Hello and welcome all to the class. In this class, we will learn about images and lists in HTML. My learning goals: images in HTML, inserting audio and video, creating lists, nested lists, practical applications, lists with CSS. Let's start. Images in HTML. Images play a pivotal role in modern web design. Images प्ले करते हैं pivotal role modern web design में, enriching content and engaging users on a visual level, जो कि बनाता है engaging content और engage करता है users को visual level पे. Images can easily be added to our website. Images को हम easily अपनी websites में भी add कर सकते हैं HTML में. Which improve their visual appeal and improves the information they carry. वो उनकी visual appeal को बढ़ा देता है और improve करता है information वो जो carry करते हैं. The image element. The image tag allows us to insert image into a web page. It is an empty tag that does not require a closing tag. जो image का tag होता है open bracket img bracket close, ये एक empty tag होता है. ये हमें insert करने में help करता है एक image. In the above code, the src attribute specifies the image file path. src हमें image का file path देता है. Alt attribute provides the alternative text that is displayed if the image cannot be load. अगर हमारी image load नहीं हो पा रही है तो एक alternative text display होता है alt से, जो हम alt में देते हैं. Width displays the width of the image and set height displays the image की height आपकी. Image formats. Image के format अलग अलग तरह के हो सकते हैं. First is JPEG. JPEG is Joint Photographic Experts Group, commonly used for photographs and images with complex color gradients and lossy compression. PNG, Portable Network Graphics, ideal for images with transparency or requiring lossless comparison. Formats. Formats commonly used for web graphics are GIF, TIFF and BMP. Supports animation and a limited color palette. GIF सपोर्ट करता है एनिमेशन को और लिमिटेड कलर पैलेट को. TIFF फॉलो करता है हाई क्वालिटी एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स को. BMP देता है हमारी स्टैंडर्ड बिटमैप इमेज फॉर्मेट को, अनकम्प्रेस्ड और रिजल्ट करता है बिग फाइल साइज में ही अनकम्प्रेस्ड होता है, और इसका जो बिग फाइल होता है BMP का वो बहुत लार्ज होता है. लेट अस राइट अ कोड टू इंसर्ट एन इमेज. हम एक कोड लिखते हैं इंसर्ट करने के लिए इमेज. यू कैन सी द कोड इन दिस image near. The output of this code is this image. Again, if we write a code, as you can see in the picture below, there is a output like this: G20, one earth, one family, one future. G20 summit, New Delhi, India. Using CSS property with img element, we can use CSS to control how image is displayed. हम CSS को यूज कर सकते हैं ये कंट्रोल करने के लिए कि हमारी इमेज कैसे डिस्प्ले होगी. CSS की कुछ प्रॉपर्टीज. पहली, बॉर्डर. डिफाइन द विड्थ ऑफ इमेज बॉर्डर. ये विड्थ डिफाइन करता है हमारी इमेज बॉर्डर का. दूसरा, हाइट. ये सेट कर देता है हाइट को हमारी इमेज की. तीसरा, विड्थ. ये सेट कर देता है विड्थ को हमारी इमेज की. Let us write the HTML code to set properties of an image using CSS. अब हम HTML कोड की मदद से अपनी इमेज को कुछ प्रॉपर्टीज सेट करते हैं CSS में. हम कोड लिखेंगे जो आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, और उसका आउटपुट हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा. Then again a code, and then we will get output like this. इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो. हम कैसे ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट करते हैं. इन एडिशन टू एनहेंसिंग अ वीडियोज वेबसाइट अपील विद इमेजेस, वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज वीडियो एंड ऑडियो क्लिप्स. हम एनहेंस करने के लिए अपनी अपील को हम मल्टीमीडिया कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे कि ऑडियो और वीडियो क्लिप. ऑडियो एंड वीडियो क्लिप इज जस्ट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसर्टिंग इमेज और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज. ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी इमेज को डालते हैं और उसको फॉर्मेट करते हैं वेब पेज पे. वीडियो एंड ऑडियो एलिमेंट्स. वी यूज ओपन ब्रैकेट वीडियो ब्रैकेट क्लोज एलिमेंट टू एम्बेड वीडियो फाइल्स एंड ओपन ब्रैकेट ऑडियो ब्रैकेट क्लोज एलिमेंट टू embed audio files on a web page.
कॉमन फाइल फॉर्मेट सबमिटेड बाय मोस्ट ब्राउजर आर, जो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट होते हैं वो हैं वीडियो फाइल फॉर्मेट्स MP4 एंड WebM, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स आर MP3 एंड वेव। सम फाइल एट्रीब्यूट्स आर, कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं ऑडियो और वीडियो के। SRC एट्रीब्यूट, इट स्पेसिफाइज द URL और द पाथ ऑफ ऑडियो और वीडियो, ये हमें पाथ देता है ऑडियो और वीडियो फाइल का। कंट्रोल्स, to specify whether to control display such a pause and play button for audio video, this attribute does not take any value. Autoplay, to specify whether to play the video or audio file automatically when the web page is loaded, this attribute does not take any value. Loop, to specify whether to play the video or audio file again when it finishes. Height, width, to specify the height and width of the video player, ये स्पेसिफाई करता है हाइट और विड्थ हमारे वीडियो प्लेयर का। नीचे एक कोड देखते हैं, दिस इज द कोड। इफ वी राइट दिस कोड वी विल गेट एन आउटपुट लाइक दिस शोइंग द वीडियो। क्रिएटिंग लिस्ट, in the world of web development, HTML lists are fundamental tool for organizing and structuring content on a web page. वेब डेवलपमेंट में HTML एक फंडामेंटल टूल है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनाइज करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं कंटेंट को वेब पेज पर। लिस्ट प्रोवाइड अ वे टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड विजुअली अपीलिंग मैनर। लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है पिक्चर को प्रेजेंट करना एक स्ट्रक्चर्ड और विजुअली अपीलिंग मैनर में। HTML 3 तरह की लिस्टिंग को सपोर्ट करता है, फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, सेकेंड अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लेट्स लुक एट ऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML is used to display items in a specific sequence. ये हमें HTML में डिस्प्ले करने को देता है आइटम्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो कि नंबर होते हैं ऑटोमेटिकली। इट इज ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट, इसको हम नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए टैग होता है ब्रैकेट ओपन OL ब्रैकेट क्लोज विथ ईच आइटम एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट ओपन LI ब्रैकेट क्लोज टैग। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीड द कोड रिटन बिलो and the output is this: 7 words of wonder listed. Types of order list, order list की कितने टाइप होते हैं? न्यूमरिक ऑर्डर लिस्ट, न्यूमरिक ऑर्डर लिस्ट जिसमें हम नंबर वाइज डालते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, उसको हम न्यूमरिक ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट जिसमें हम अल्फाबेटिकली अपनी हायरार्की डालते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट। रोमन न्यूमरल ऑर्डर लिस्ट, रोमन न्यूमरल ऑर्डर लिस्ट जिसमें हम रोमन नंबर से अपनी लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कस्टम सिंबल लिस्ट, कस्टम सिंबल लिस्ट जो कि लेस कन्वेंशनल है बट फिर भी हम उसमें कुछ अलग यूनिक सिंबल डाल के उसको कस्टम करके सिंबल लिस्ट बना देते हैं जो कि इजीली डिस्टिंग्विशेबल होती है। कस्टम सिंबल लिस्ट हम देख सकते हैं आउटपुट वाली इमेज में। नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। An unordered list in an HTML is used to display a list of items without any specific order. इसमें हम डिस्प्ले कर सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के। It is created using the UL tag and the each item is enclosed in LI tag. इसको हम क्रिएट करते हैं UL tag से और हर आइटम एनक्लोज होता है LI tag पे। फॉर एग्जाम्पल UL LI फर्स्ट आइटम, LI सेकेंड आइटम, LI UL, it creates a bullet point list with the 2 item. ये हमारे को बुलेट पॉइंट लिस्ट देता है 2 आइटम के साथ। नीचे दी गए कोड में हम इसको पढ़ सकते हैं और इस कोड का कुछ आउटपुट इस तरह है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML is used to display a list of terms and their description. वो डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ टर्म्स को और उनकी डिस्क्रिप्शन को। इट इज क्रिएटेड यूजिंग DL टैग, हम इसको DL टैग के क्रिएट करते हैं जिसमें हर टर्म इनसाइड होती है DT टैग में और हर टैग का डिस्क्रिप्शन होता है DD टैग में। यू कैन रीड द कोड एग्जाम्पल हेयर इन द पिक्चर बिलो एंड द आउटपुट इज लाइक दिस। नेस्टेड लिस्ट, nested lists in HTML are list within the list. Nested list is list within the list. Allow us to create hierarchical structure. ये allow करता है create करना hierarchical structure. We can nest an unordered list, ordered list and description list. हम तीनों तरह की लिस्ट को nest कर सकते हैं inside another list item, जिसमें कि हम एक सब आइटम भी ऐड कर सकते हैं।
उसका कोड नीचे दिए गए एग्जाम्पल में आप पढ़ सकते हो। और उसका आउटपुट कुछ इस तरह होता है नेस्टेड लिस्ट का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेस्टेड लिस्ट आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। नेस्टेड लिस्ट वाइडली यूज होते हैं वेरियस एप्लीकेशंस में। दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैट्रिसेस, tables, grids and hierarchical data structures like family trees और organizational structure। इसकी मदद से हम hierarchical data को structure दे सकते हैं जैसे कि organizational charts और family trees। In data analysis, nested lists can be used to store multi-dimensional data sets। Data analysis में nested list को हम यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल डायमेंशनल डेटा सेट्स को। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन। चैलेंजेस और कंसिडरेशन क्या क्या हो सकते हैं? नेस्टेड लिस्ट जबकि पावरफुल टूल है बट ये कॉम्प्लेक्स कर सकता है हमारे ट्रैकिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को। ऑल्टरनेट डेटा स्ट्रक्चर। ऑल्टरनेट डेटा स्ट्रक्चर हैं जैसे कि डिक्शनरीज और क्लासेस, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकती हैं हमारी लिस्ट को हैवीली नेस्ट करने में। डिक्शनरीज अलाउज अस टू एसोसिएट डेटा विद स्पेसिफिक कीज। डिक्शनरी अलाउ करती है हमें डाटा को एसोसिएट करने की स्पेसिफिक की से, जिसकी मदद से हम डाटा को मैनिपुलेट और एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। यू कैन सी अ कोड बिलो एंड द आउटपुट ऑफ द कोड इज लाइक दिस। List with CSS. We can enhance the visual appeal of list using CSS properties. CSS properties use करके हम अपनी लिस्ट की विजुअल अपीयरेंस को एनहेंस कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट स्टाइल इमेज, URL उसका वैल्यू है। हम इसकी मदद से एक पिक्चर को इमेज को सेट कर सकते हैं लिस्ट आइटम में। लिस्ट स्टाइल पोजीशन उसका है इनसाइड और आउटसाइड वैल्यू। हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं पोजीशन लिस्ट आइटम की। लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और नन, इसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टाइल ऑफ बुलेट लिस्ट आइटम के लिए। आप नीचे दिया गया कोड पढ़ सकते हैं जो इमेज में है और इस कोड का आउटपुट कुछ इस तरह है। In this chapter we learnt about how we style a list and how we make a list, insert an image, insert a video, insert an audio and create the nested list. There are three types of list: ordered, unordered and description list. Now it's exercise time. Choose the correct answer. Which of the following CSS properties is used to specify the placement of image with respect to surrounding text on a web page? We use float. Which of the following is not an attribute of video element? Alt. What is the purpose of using an ordered list in element? To organize content sequentially. What is the purpose of using a definition list DL in HTML? To define terms and provide explanations. Which CSS property can be used to control number style of ordered list? List style type. Filling the blanks using given words. To display image with rounded corners, the dash CSS property can be used with img element. We can use border radius. The dash attribute of the audio tab specifies whether to play the audio file again when it finishes. Loop. A well-crafted ordered list should maintain a clear hierarchy and dash across the list items. Consistency. CSS can be used to style lists and control aspects such as bullet styles and indentation and spacing. Definition list contains of dash and dash element that defines terms and provide corresponding descriptions, DT and DD. State true or false. Unordered lists in HTML are used to display items in a specific order. False. The UL element is used to create an ordered list in HTML. True. Alphanumeric ordered lists are suitable for outlining step-by-step instructions. True. Consistent formatting in ordered list means using varying font styles using and elements for different list items. False. CSS cannot be used to style and customize the appearance of HTML list. False. Prearrange jumble words. First is list. Second is structure. Third is mistel. Fourth is paragraph. Fifth is controller.
and the last is element. Here the exercise ends.